آج کا عنوان ہے اب گھر بسایا جائے۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق مکہ میں رہنے والے عزت دار گھرانے سے ہے، جہاں حسب و نسب بھی ہے، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دولت بھی۔ سیدہ مکہ میں طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جانی جاتی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ سیدہ بھی قریشی ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ 4 پشت پہلے ان کا نسب نامہ رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ سیدہ کی پہلی شادی بنی تیم میں ابی حالہ سے ہوئی۔ ان سے سیدہ کا ایک بیٹا ہے۔ ابی حالہ کی وفات کے بعد سیدہ نے عتیق بن عائد مخزومی سے دوسری شادی کی۔ ان سے سیدہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہند ہے۔ عتیق بن عائد بھی وفات پا گئے۔ سیدہ نے اس کے بعد اپنی ساری توجہ کاروباری معاملات پر رکھی ہے۔ سیدہ سے شادی کے لیے بہت سے قریشی سرداروں نے پیغام بھجوائے، لیکن سیدہ خدیجہ انکار کرتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان کی بیٹی فخیتہ بنت ابی طالب یعنی ام ہانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چچا نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں فخیتہ کی شادی اپنے والد کے سسرال بنی مخزوم میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے احسان کا بدلہ دے سکوں جو انہوں نے میری والدہ کی شادی میرے والد سے کر کے ہم پر کیا۔ بیٹا، سخی کی سخاوت کو لوٹانا چاہیے۔ فخیتہ بنت ابی طالب کی شادی حبیرہ مخزومی سے ہوئی۔ فخیتہ ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول اللہ کی عمر اب 25 سال ہے۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت، طاقتور، شریف اور پاک باز ہیں۔ اگرچہ امیر نہیں مگر سخی ہیں۔ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں مگر ذہین اور عقل مند ہے۔ رسول اللہ کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں جن میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں۔ رسول اللہ کا رنگ سفیدی مائل ہے۔ آپ کے دانت نہایت متناسب اور چمکدار سفید ہیں۔ پیشانی چوڑی ملتی ہوئی ابرو ہیں۔ ناک سیدھی اور متوازن ہے۔ سینہ چوڑا اور پیٹ سیدھا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں دبی ہوئی اور پچکی ہوئی نہیں ہیں۔ پاؤں کے تلوے اتنے بھرپور اور ہموار ہیں کہ زمین پر پاؤں کے نشان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں موٹی نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی آواز بڑی میٹھی اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ رسول اللہ اتنی آہستگی اور نرمی سے بات کرتے ہیں کہ الفاظ گنے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے بال نہ تو گھنگریالے ہیں نہ ہی بالکل سیدھے۔ بال سمرے ہوتے ہیں جو کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تک پہنچتے ہیں۔ داڑھی مکمل اور بھرپور ہے۔ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں یا کھڑے سب سے نمایاں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تیز چلتے ہیں جیسے کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ باکمال اخلاق، سچا، محترم، با اصول، با اعتماد اور کمال اعتبار والا انسان۔ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ سیدہ خدیجہ کی رسول اللہ سے زندگی بھر کا رشتہ رکھنے کی خواہش عین فطری ہے۔ رسول اللہ سے کاروباری شراکت نے سیدہ خدیجہ کے ذہن میں ایک نہایت اچھے انسان کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ سیدہ خدیجہ کبھی کبھار رسول اللہ کو موسمی پھل اور دوسرے تحائف بھیجتی ہیں۔ رسول اللہ کو ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس آئے ہوئے 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اپنی بھابھی عوام بن خویلد کی بیوی سیدہ صفیہ سے ملنے گئی۔
सैयदा सफिया रसूलुल्लाह की फूफी हैं और उम्र में रसूलुल्लाह से छोटी। सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की फूफी से रसूलुल्लाह के बारे में बातें करती रहीं। सैयदा सफिया से मिलकर जो बातें उनके इल्म में आईं, उनसे सैयदा खदीजा के दिल में रसूलुल्लाह का एहतराम और भी बढ़ गया। सैयदा सोचती रहती हैं लेकिन खुद से शादी का पैगाम भेजने की हिम्मत नहीं रखती। एक दिन अपनी करीबी दोस्त नफीसा बिनते उमैया से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। नफीसा ने हामी भरी कि मैं इस सिलसिले में मोहम्मद से बात करती हूँ। नफीसा एक दिन रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आईं। उसके बाद क्या हुआ, नफीसा से सुनते हैं। मैंने रसूलुल्लाह से कहा, आप जवान हैं, एक आला खानदान से हैं, मुआशरे में इज्जत और आला मकाम है, आप शादी क्यों नहीं करते? आपके लिए किसी आला और इज्जतदार खानदान में शादी बहुत आसान है। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, मेरे पास एक अलहदा खानदान की किफालत के जराए नहीं हैं। मैंने कहा, अगर एक खूबसूरत, दौलतमंद और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली शरीके हयात मिल जाए तो आपका जवाब क्या हो? रसूलुल्लाह ने पूछा, आप किसके मुताल्लिक बात कर रही हैं? मैंने कहा, खदीजा बिनते खुवैलिद। रसूलुल्लाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? खदीजा ने बड़े बड़े अमीर सरदारों के रिश्तों को इनकार कर दिया है, वो मुझसे शादी क्यों करेंगी? मैंने रसूलुल्लाह से कहा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। रसूलुल्लाह ने यकीनन इन बातों से अंदाज़ा कर लिया होगा कि नफीसा सैयदा खदीजा की रजामंदी के साथ ही उनके पास आई हैं। नफीसा खुशी खुशी वापस गईं और अपनी दोस्त को सारी बात बताई। कुछ दिन बाद सैयदा खदीजा ने रसूलुल्लाह को अपने घर आने की दावत दी है। रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए। सैयदा और रसूलुल्लाह के दरमियान गुफ्तगू हुई। सैयदा पहले ही नफीसा के जरिए ये जान चुकी हैं कि रसूलुल्लाह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। सैयदा ने रसूलुल्लाह से कहा, मेरे चचा ज़ाद, मैं तुमसे शादी करने की ख्वाहिश इसलिए रखती हूँ कि तुम रिश्ते में मेरे करीबी हो। अपनी कौम में तुम्हारी शान बहुत बुलंद है, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैंने मामलात में तुम जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। सैयदा ने अदब एहतराम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो रसूलुल्लाह ने ये रिश्ता खुशी से कबूल कर लिया। सैयदा ने इसके बाद रसूलुल्लाह से कहा, अब आप अपने चचा को हमारे घर भेजें जो मेरे चचा से मेरा रिश्ता मांगे। सैयदा खदीजा के वालिद खुवैलिद बिन असद हर्बे फिजार से पहले ही वफात पा चुके हैं। अमर बिन असद सैयदा खदीजा के चचा और वली हैं। अबी तालिब अगले दिन अमर बिन असद से मिले और रसूलुल्लाह के लिए सैयदा खदीजा के रिश्ते की बात की। रिश्ता खुशी खुशी तय पा गया और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। रसूलुल्लाह अपने तमाम चचा और दूसरे कुरैशी सरदारों के साथ निकाह के लिए सैयदा खदीजा के घर गए। सैयदा खदीजा से निकाह के लिए अबी तालिब रसूलुल्लाह के वकील हैं। अबी तालिब ने इस मौके पर खुतबा निकाह पढ़ा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहिम की औलाद से, इस्माइल की खेती से, माद की नस्ल से और मुदर के असल से पैदा किया। उस रब ने हमें अपने घर बैतुल्लाह का पासबान बनाया, हमें एक ऐसा घर दिया जिसका हज किया जाता है और एक ऐसा हरम बख्शा जहां अमन है, हमें लोगों का हुक्मरान मुकर्रर किया। अल्लाह की तारीफ के बाद मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का मवाजना इस दुनिया के बड़े से बड़े आदमी से किया जाए तो यकीनन मोहम्मद का पलड़ा भारी होगा। अगर मेरा भतीजा मालदार नहीं तो क्या हुआ? माल एक ढलने वाला साया और बदल जाने वाली चीज है। मोहम्मद, जिसकी रिश्तेदारी को तुम सब लोग खूब जानते हो, उसने खदीजा बिनते खुवैलिद का रिश्ता मांगा है। खुदा की कसम, मुस्तकबिल में मोहम्मद की शान बड़ी बुलंद होगी, इसकी कद्र मंजिलत बहुत ज्यादा होगी।
अबी तालिब के बाद सैयदा खदीजा की तरफ से उनके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल खड़े हुए और खुतबा दिया। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इज्जतों और इनामात से नवाजा है, जिसका जिक्र आप अबी तालिब ने किया है। हमें अल्लाह करीम ने बरतरी दी जिसका जिक्र आपने किया है। हम सारे अरब के सरदार हैं और उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। हमारे कबीले का कोई फर्द इन बातों से इनकार नहीं करता। कोई शख्स भी आपकी फजीलत का इनकार नहीं करता। हम आपके खानदान से ताल्लुक जोड़ने का बहुत शौक रखते हैं। खानदान कुरैश, गवाह रहना कि मैंने खदीजा बिनते खुवैलिद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कर दिया है। अरब की तहजीब में बयान किया जा चुका है कि औरतों की शादी के लिए वली का राजी होना जरूरी था। अबी तालिब की ख्वाहिश पर सैयदा खदीजा के चचा अमर बिन असद ने इस तकरीब में ऐलान किया। कबाइले कुरैश, गवाह रहना कि मैंने खदीजा बिनते खुवैलिद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कर दिया है। इस पर कुरैश के सरदार गवाह मुकर्रर हुए हैं। ये रसूलुल्लाह का पहला निकाह है। इस तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के बहुत से अजीज और रिश्तेदार शरीक हुए। कुरैश मक्का के तकरीबन तमाम सरदार भी शरीक हुए हैं। मक्का में रहने वाले लोगों के ख्याल में ये एक आला रिश्ता है। सैयदा खदीजा एक इज्जतदार और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं और रसूलुल्लाह मक्के के मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान के फर्द हैं जो अपनी ज़ाती खूबियों की वजह से भी अपना एक मकाम रखते हैं। रसूलुल्लाह ने निकाह के मौके पर अपनी कनीज़ बरका को आज़ाद कर दिया। बरका रसूलुल्लाह से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि आज़ादी के बाद भी रसूलुल्लाह के घर ही रहीं। शादी का महर 500 दिनार है। एक रिवायत के मुताबिक महर 20 ऊंट है। सैयदा खदीजा की जानिब से दफ का इंतजाम किया गया है जिसे छोटी बच्चियां बजा रही हैं। निकाह के बाद सैयदा खदीजा ने रसूलुल्लाह को चांदी या सोने के 2 औखिया दिए और कहा है, आप एक उम्दा पोशाक खरीद कर मुझे हदिया कीजिए। चांद मेंढे खरीद लें और जरूरत की चीजें भी। रसूलुल्लाह ने ऐसा ही किया है। रिवायत के मुताबिक दुल्हा अपने घर दुल्हन ले जाने के बाद एक दावत का एहतमाम करता है। आजकल हम इसे वलीमा कहते हैं। रसूलुल्लाह ने इस शादी के बाद दावत का एहतमाम किया है। इस दावत में तकरीबन 200 लोगों ने शिरकत की। 2 ऊंट ज़िबा करके खाना बनाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन सैयदा खदीजा के साथ अबी तालिब के घर पर ही रहे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने सैयदा खदीजा के घर में रिहाइश इख्तियार कर ली है। कुछ अरसे बाद हलीमा सादिया मक्का आईं और रसूलुल्लाह से मिली। सैयदा खदीजा ने हलीमा सादिया की बड़ी खिदमत की और उन्हें जाते हुए ऊंट भी दिए हैं। हलीमा सादिया अपने रिजाई बेटे को देखकर बहुत खुश हुई होंगी और उस सलूक से भी जो उनकी बहू ने उनके साथ किया। इस शादी से रसूलुल्लाह की जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आई है। सैयदा खदीजा तो पहले ही रसूलुल्लाह के हुस्न अखलाक और आदात से मुतासिर हैं। अब उन्होंने जिंदगी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वक्फ कर दी है। सैयदा ने अपना माल, जान और दिल रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दिया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ये ऐलान नबूवत से 15 साल पहले के हालात व वाक़यात हैं। रसूलुल्लाह की ज़ात ऐलान नबूवत से पहले भी इतना ही आला किरदार और कमालात अपने अंदर लिए हुए है। सैयदा खदीजा के पहले शौहर अबी हाला से एक बेटा है जिसका नाम हिंद बिन अबी हाला है। वो सैयदा से मिलने आता है। रसूलुल्लाह हिंद से बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। हिंद का बयान है, रसूलुल्लाह लोगों की निगाहों में बहुत अजीम हैं। छोटे कद वाले से लंबे और लंबे कद वाले से कम, बाल ज्यादा घुंघरियाले नहीं हैं।
रसूल अल्लाह के बाल कानों के निचले सिरे तक हैं, रंग सफेद, पेशानी कुशादा और अबरू बारीक हैं, दाढ़ी घनी है, दोनों गाल हमवार हैं, मुंह खुला है और दांत चमकते हुए हैं। जिस्म के तमाम हिस्से मुतवाजिन हैं, कंधे चौड़े और हाथ कुशादा यानी खुले हुए हैं। हथेलियां गोश्त से भरी हुई हैं, दोनों पांव भरे हुए हैं, पांव का दरमियानी हिस्सा उठा हुआ है। कदम उठाते हैं तो कुव्वत से उठाते हैं, कदम रखते तो जमा कर, जब चलते हैं तो यूं लगता ऊंचाई से उतर रहे हों। निगाहें झुकी होती हैं, जिससे मिलते हैं उसे पहले खुद सलाम करते हैं। रसूलुल्लाह का चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये बयान रसूलुल्लाह के हिंद के साथ हुस्ने सुलूक को जाहिर करता है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार उसकी गुफ्तगू और बयान करने के अंदाज में नजर आता है। हिंद का बयान सब कुछ साफ साफ बता रहा है। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया, हुस्ने तख्लीक को रश्क आया, उसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रिजा बन के आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक इस कायनात में सबसे आला है। उन्होंने जो मकाम पाया वो किसी और के नसीब में नहीं है। रसूलुल्लाह तो अल्लाह करीम की रिजा हैं, अल्लाह करीम की मर्जी हैं।